Hi everyone, I'm Dr. Anshuman Pancholi, your general surgery faculty at DigiNerve. Let's revise another important topic for INICT, that is trauma triage and primary survey in trauma. अब इसमें से बहुत सारे questions आते हैं, एक एक करके उन सब questions को cover करते हैं. All right? Okay. So the first thing that we need to read about is trauma triage. What exactly is trauma triage? Let's try and understand. So triage basically means to sort out. So basically this term originated mainly for mass casualty events. We were trying to prioritize the treatment इन केसेस ऑफ मास कैजुअलिटी. ऑब्वियसली आपके बहुत सारी कैजुअलिटी, बहुत सारे पेशेंट्स हैं आपके पास, तो आपको सॉर्ट आउट करना है कि किस पेशेंट को पहले ट्रीट करना है एज कंपेयर टू अ पेशेंट हु डज नॉट रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट. अब वो पेशेंट ऐसा भी हो सकता है जिसको कम ट्रीटमेंट चाहिए, और एक ऐसा पेशेंट भी हो सकता है जिसमें आप ट्रीट करने के बावजूद कोई फायदा नहीं. सो यू नीड टू बेसिकली प्रायोरिटाइज द ट्रीटमेंट. सो patient with the greatest chances of survival with the least expenditure of resources is treated first. Now the patients who are not treated does not mean that they do not deserve the treatment. Basically we are trying to prioritize our resources. That is what is the concept here, right? Okay, तो हम basically कुछ हम कैटेगरीज की बात करेंगे बेटा. So the first category that we talk about is the red category, wherein these patients need immediate medical treatment or immediate medical attention. These are critical patients, and when not intervened can be life threatening for these patients. So these are critical, but they're likely to survive if the treatment is given early. Within seconds to minutes आप treat करते हो, so इनके survival chances बढ़ जाते हैं. The next category that we talk about is the yellow category, where the treatment needed is urgent. These are critical, but they can wait for treatment within hours. मतलब within hours you need to treat these patients, but they are also needed to be managed on urgent basis. The first priority red, then we come to yellow. Next priority that we talk about is a third category, that is green category patients. These are non-urgent patients, which are stable patients, mobile ambulatory patients, where the treatment can be delayed for hours to days. Treat करना है, but it can be delayed. The fourth category that we talk about is the blue category, where expectant management is done, as in the patients are moribund, they are unlikely to improve when the treatment is given to them, and therefore they are put on a later category. So the blue category, these are the moribund patients, the expectant patients, right? The last one is the black category of the triage, wherein which we include the deceased patients, or the patients who are brought dead. ठीक है? So this is the category that you need to remember and triage the patients accordingly. अब क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो आपसे डायरेक्टली कैटेगरीज पूछते हैं ये, इसके अलावा वो आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके पूछेंगे बेटा कि ये किस कैटेगरी में फिट होता है. तो ये एग्जाम्पल्स आपके बिलियन लाफ के बहुत सिंपल से चार्ट में दिए हुए हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल्स. ये डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं. फर्स्ट, अब रेड कैटेगरी में क्या क्या आता है बेटा? ऑल द लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज इन द रेड कैटेगरी कौन कौन सी होंगी आपके लिए? सिवियर फेशियल ट्रॉमा, एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ऑब्वियसली इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग. प्रोफ्यूज एक्सटर्नल ब्लीडिंग, इट कैन बी एक्सैंग्मिनेटिंग, उस ब्लीड को नहीं रोका तो बाकी सारे मेजर्स आपके फेल हो जाएंगे. सो प्रोफ्यूज एक्सटर्नल ब्लीडिंग. हीमोथोरैक्स, फ्लेल चेस्ट. Next after that would be EDH, and obviously major intra-abdominal bleed. Now coming on to the next category, that is the yellow category. इसके examples क्या क्या हैं बेटा? We talk about fractures. कौन से? दो तरह के fractures, compound fractures एंड पेल्विक फ्रैक्चर्स. पेल्विक हेमरेज को हम मैनेज करने के लिए बाइंडर यूज करते हैं. याद है, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि बाइंडर्स यूज होते हैं. द लेवल ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटरस बाइंडर्स को हम यूज करते हैं. सो कंपाउंड एंड पेल्विक फ्रैक्चर. दूसरा स्पाइनल इंजरीज. तीसरा डीग्लविंग इंजरीज. एंड द फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज रप्चर्ड एब्डोमिनल विस्कस. नाउ द कंफ्यूजन इज द स्टूडेंट्स फील दैट रप्चर्ड एब्डोमिनल विस्कस रेड कैटेगरी में आना चाहिए. ऐसा नहीं है बेटा. रप्चर्ड एब्डोमिनल विस्कस या रप्चर्ड हॉलो एब्डोमिनल विसरा इज नेवर अ इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. ये जो प्रोटोकॉल, जो ट्रायज कैटेगरीज है, फिजियोलॉजी ड्रिवन है कि लाइफ थ्रेटनिंग जो है उसको हम पहले रख रहे हैं बेटा. अब देखने में ऐसा लगेगा एनाटॉमिकली कि रप्चर्ड विस्कस है, बट दैट पेशेंट विल सर्वाइव. इट नीड्स सर्जरी, द पेशेंट नीड्स सर्जरी, बट नॉट इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज केप्ट इन द येलो कैटेगरी. हाउएवर इफ देयर इज एन इंट्रा-एब्डोमिनल ब्लीड, इफ इट इज एसोसिएटेड विद द रप्चर ऑफ द विस्रा, दैट ऑब्वियसली शिफ्ट्स अप इनटू द रेड कैटेगरी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज द ग्रीन कैटेगरी, वेयर वी टॉक अबाउट सिंपल fractures, sprains and minor
माइनर लैसरेशंस। कंपाउंड और पेल्विक फ्रैक्चर्स येलो में थे, ग्रीन में आपके सिंपल फ्रैक्चर्स हैं। ब्लू कैटेगरी जो एक्सपेक्टेंट है, मॉरिबेंड पेशेंट्स है, कौन कौन से बेटा? सिवियर ब्रेन डैमेज हो चुकी है, एक्सटेंडेड बर्न्स हैं, एंड देयर इज डिसरप्शन, लॉस ऑफ चेस्ट वॉल और एब्डोमिनल वॉल स्ट्रक्चर्स, दीज आर इंक्लूडेड इनटू द ब्लू कैटेगरी। तो ये आपका बेसिकली ट्रायड से रिलेटेड क्वेश्चंस वाला मैटर कवर हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू द प्राइमरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे से बेसिकली पहले हम समझते हैं कि पेशेंट को हम प्री हॉस्पिटल फेज में मैनेज किया ट्रॉमा अटेंडर्स ने, उसके बाद वो लेके आए हॉस्पिटल के अंदर। तो इस दौरान उन्होंने एक सीक्वेंस फॉलो करी जिसको हम प्राइमरी सर्वे बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द हैंडओवर ऑफ दिस पेशेंट्स फ्रॉम द प्री हॉस्पिटल फेज टू द हॉस्पिटल फेज। तो ये हैंडओवर में कुछ बेसिक निमोनिक्स फॉलो होते हैं, ये निमोनिक्स आपके लिए जानना जरूरी है। नाउ प्रॉपर हैंडओवर में जो होता है उसमें एक निमोनिक हम फॉलो करते हैं, दैट इज द MIST। ये प्री हॉस्पिटल जो टीम होती है वो हॉस्पिटल हैंडओवर के टाइम में ये हैंडओवर टूल होता है। सो व्हाट इज दिस MIST? M स्टैंड्स फॉर मैकेनिज्म ऑफ एंड टाइम ऑफ इंजरी। मैकेनिज्म भी बताते हैं, टाइम ऑफ इंजरी आपको हैंडओवर वाले पेशेंट, हैंडओवर वाले जो पर्सनल्स होते हैं ये आपको बताते हैं। द M इज फॉर मैकेनिज्म एंड टाइम ऑफ इंजरी, I स्टैंड्स फॉर व्हाट वाज द इंजरी सस्टेन्ड, S स्टैंड्स फॉर साइंस एंड सिम्टम्स, एंड T स्टैंड्स फॉर व्हाट वाज द ट्रीटमेंट दैट वाज गिवन एंड व्हाट वाज द ट्रैवल इन्वॉल्व। ठीक है, ये सब आपको बताते हैं MIST के फॉर्म में। ना अब ये मैकेनिज्म एंड टाइम ऑफ इंजरी में जो M होता है बेटा, इसको हम फर्दर एलैबोरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पल। ये एम्पल हिस्ट्री आपको बताते हैं, ये भी आपको प्री हॉस्पिटल फेज वाले पर्सनल्स है वो आपको बताएंगे क्या क्या होता है इसमें। A स्टैंड्स फॉर एलर्जी, ये कहाँ से मिलता है आपको? एम्पल हिस्ट्री पेशेंट अटेंडर से मिलता है अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो। सो एलर्जीज ऑफ द पेशेंट्स, मेडिकेशंस जिन पेशेंट ऑलरेडी ले रहा है, मेडिकेशंस करंटली इन यूज। P स्टैंड्स फॉर पास्ट इलनेस और प्रेगनेंसी इफ द पेशेंट इज प्रेग्नेंट। L स्टैंड्स फॉर लास्ट मील, क्यों जरूरी है? अगर इंट्यूबेट करना है तो ये L लास्ट मील वाली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड इवेंट्स और द एनवायरमेंट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री। सो दिस इज द एम्पल हिस्ट्री दैट यू आर सपोज टू नो। ओके, अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, दैट इज प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन अलॉन्ग विद द प्राइमरी सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, केवल सर्वे नहीं करते हैं, अलॉन्ग विद द सर्वे वी आल्सो गो फॉर साइमल्टेनियस रिससिटेशन। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द ATLS प्रिंसिपल्स। द ट्रॉमा टीम ऑब्वियसली प्री हॉस्पिटल वाली भी परफॉर्म करती है एंड हॉस्पिटल टीम ऑल्सो परफॉर्म्स द प्राइमरी सर्वे। नाउ दिस प्राइमरी सर्वे एंड सेकेंडरी सर्वे ये सिंगल ऑड इवेंट्स नहीं होते हैं, दीज आर कंटिन्यूसली परफॉर्म्ड एंड इवैल्यूएटेड अलॉन्ग द जर्नी ऑफ अ ट्रॉमा पेशेंट। नाउ लेट अस फॉलो द ABCDE। हम पहले पढ़ते हैं क्या होता है ABCDE, फिर CABCD बारे में समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो A स्टैंड्स फॉर एयरवे मेंटेनेंस विथ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन मोशन। एयरवे मेंटेनेंस आपको याद रहता है, ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन मोशन आप भूल जाते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट इसके साथ में। ठीक है, ये कैजुअलिटी में समझ में आ जाता है देख के कि जो भी एनेस्थेटिस्ट आया अगर उसको इंट्यूबेट, वो रफली इंट्यूबेट कर रहा है, पूरी गर्दन हिला रहा है, इसका मतलब उसको ये नहीं पता कि सर्वाइकल स्पाइन मोशन रिस्ट्रिक्ट करना है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन कंट्रोल। C स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल। D is obviously for disability wherein we assess the GCS, assessment of the neurological status, and E stands for environmental and exposure control. अब ये तो ABCD सीक्वेंस है जो आपको पता होता है, इसी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। अब ये छोटा सी क्या जुड़ जाता है कभी कभी ABCD से पहले बेटा, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एक्ससैंग्विनेटिंग हेमरेज यू हैव टू कंट्रोल दैट फर्स्ट, अदरवाइज इतना मैसिव ब्लीड चल रहा है, द पेशेंट इज गोइंग टू ब्लीड टू डेथ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंट्यूबेटिंग अ डेड पेशेंट, राइट? दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। सो wherever there is a visible external profuse bleeding we need to control that first, and wherein usually battle injuries में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है बेटा, वॉर जो होते हैं बैटल फील्ड्स में हम यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, बट दिस इज प्रीटी मच एप्लीकेबल इन द रियल लाइफ एज वेल फॉर एक्ससैंग्विनेटिंग एक्सटर्नल हेमरेज। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले छोटे सी को ही पढ़ते हैं, कंट्रोल ऑफ एक्ससैंग्विनेटिंग हेमरेज। अब क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट प्रेशर इज अप्लाइड ऑन टू द ब्लीडिंग वुंड एंड द प्रॉक्सिमल आर्टरी। जहां ब्लीड कर रहा है वहां रोका, उसके प्रॉक्सिमल आर्टरी है उसको भी कंप्रेस कर दिया। अगर इससे रुक गया तो ठीक है, उसके आपने प्रेशर ड्रेसिंग करी, उसके बाद हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग करी। अगर ये भी नहीं हो पाया, इफ इट इज नॉट स्टॉपिंग, इफ इट फेल्स वी गो फॉर टूर्निकेट एप्लीकेशन टू प्रॉक्सिमल टू द वुंड वी गो फॉर टूर्निकेट एप्लीकेशन। टूर्निकेट एप्लीकेशन में एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप टूर्निकेट लगाओगे आपको टूर्निकेट एप्लीकेशन टाइम को नोट करना है, क्योंकि आपको लिम्ब इस्कीमिया टाइम का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं लगा के छोड़ दिया, लिम्ब इस्कीमिक हो गया, द होल पर्पस ऑफ इट गेट्स डिफीटेड, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड हैव द टूर्निकेट एप्लीकेशन टाइम नोटेड. All right, okay. Next thing, we start with the ABCD sequence. So airway maintenance along with the restriction of cervical spine motion. So this is the first step, cervical spine stabilization. Now, we examine it quickly using the Nexus criteria or the Canadian C-spine rule. अब ये Nexus criteria क्या है ये आपको पता होना चाहिए बेटा.
एग्जामिनेशन मतलब इसके बाद हम ये असेस करते हैं कि पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइन इमेजिंग की और फिलाडेल्फिया कॉलर की जरूरत है या नहीं है. सो व्हाट इज दिस नेक्स्ट क्राइटेरिया? एन स्टैंड्स फॉर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इफ प्रेजेंट. E stands for whether there is ETOH or alcohol intoxication. Ethyl alcohol intoxication तो नहीं है. X here stands for extreme distracting injuries. If there is a fall from height, आपकी cervical spine या फिर आपकी entire spine can be injured. So there are distracting injuries if present. Then U stands for unable to provide history or there is altered consciousness. And the S obviously stands for spinal tendinous midline. इनमें से अगर एक भी present है, we will need to go for imaging along with application of the Philadelphia collar. If none of these are positive, we can avoid imaging in these patients. Okay, so this is the Philadelphia collar that you should be able to identify. अगर आपका एग्जाम में दिया है, this is the hard Philadelphia collar. Soft Philadelphia collars भी आते हैं. ठीक है बेटा. ओके, नाउ ये पूरा ABCD सीक्वेंस जो होता है एक एक्सपीरियंस क्लिनिशियन केवल 10 सेकंड के अंदर असेस कर सकता है. कैसे असेस करते हैं देखते हैं इसमें. As soon as I find, suppose I am the clinician in the casualty, as soon as the patient is wheeled in into my casualty, I'll walk to the patient immediately and tell him, okay, hi, I'm Dr. Anshuman Pincholi. Do you know how you landed into this hospital? What happened to you? So if the patient says, sir, I was driving a two-wheeler or a four-wheeler, suddenly there was a strong impact and I don't really remember after that. I just started feeling wet from my forehead or my back of the neck, and then I touched and I saw there was blood, and then I saw some people took me, picked me up and brought me to the hospital. So if all these answers are coming out of the patient, that means his airway is fine, his breathing is fine, his circulation is fine, also fine, because वो dizzy नहीं है, right? So if the patient is able to answer all these questions, that means there is no major airway compromise, the breathing is also not compromised, and the level of consciousness is not markedly decreased. अभी क्या है मतलब इमीडिएटली पेशेंट थोड़ा स्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा स्टेबल बना रहेगा. दिस इज फॉर द इमीडिएट असेसमेंट, राइट? ओके, अब अगर आपको एयरवे मेंटेनेंस की जरूरत है, नाउ व्हाट ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस कंपोनेंट. एयरवे के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए. What are the airway maintenance maneuvers? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं. We need to assess the consciousness. If the consciousness is decreased and the chances of tongue fall obviously are high, tongue can fall backwards and obstruct the airway. So what do we need to do in such cases? इसमें क्या क्या maneuvers आप यूज करते हैं, केवल नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर, बाकी पूरी डिटेल्स आपने एनेस्थीसिया में पढ़ी हुई हैं. So we go for jaw thrust, we go for chin lift, we can also insert a nasopharyngeal airway or an oropharyngeal airway. ये इमेज में आपको chin lift दिख रहा है. अगली इमेज में you can appreciate a jaw thrust here. आपको मैंडिबल को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हो, that is jaw thrust here. ये दो एयरवेज आपको नीचे दिख रहे हैं बेटा. This is the NP airway, nasopharyngeal airway दिख रहा है आपको. This is the method of measuring the length of the nasopharyngeal airway. ये भी आपसे पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए. Then this is your oropharyngeal airway. ये जो आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पर ये बाइट ब्लॉक लिखा है, ये आपका दांतों के बीच के आसपास जाता है. ठीक है, ये उल्टा नहीं इंसर्ट करना है इसको. दिस ओपन एरिया इज हियर इन फ्रंट, इन माउथ वाला एरिया, टीथ के आसपास एरिया, तो प्रिवेंट द बाइट. ठीक है, ऑल राइट. सो दिस इज द oropharyngeal airway. Coming on to the signs of compromise area, ये बहुत इंपॉर्टेंट. क्या क्या साइंस होता है? नंबर 1, फर्स्ट इफ द पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक, पहला. दूसरा, अगर GCS 8 या 8 से कम है, दिस इज व्हाट इज वेरी फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन सीवियर हेड इंजरीज. द GCS इज 8 or less than 8, दिस इज व्हाट इज इंडिकेटिव ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे, एंड ऑब्वियसली द पेशेंट इज कोमाटोज. नाउ यही क्वेश्चन वो आपसे बार बार पूछता है. वो सीक्वेंस असेस करने की कोशिश करता है कि आप सीधा ICD डाल दोगे टेंशन न्यूमो में, कि पहले एयरवे भी असेस करोगे, तो एयरवे आप असेस करोगे. अगर GCS 8 से कम है तो पहले आपको एयरवे को मैनेज करना पड़ेगा, देन यू गो फॉर ICD इंसर्शन. ठीक है, ऑल राइट. नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर definitive airway? Number 1, when there is a need for airway protection. कब बेटा? if there is severe maxillofacial fractures. दूसरा, अगर नेक इंजरीज है. नेक इंजरी तो क्या क्या हो सकता है बेटा? नेक हेमाटोमा हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है एयरवे को. दे कैन बी इडीमा दैट कैन हैपन, लैरेंजियल और ट्रेकियल इंजरीज. इनहेलेशनल इंजरी हुई है बर्न से, तो आपको जितना जल्दी हो सके एयरवे एस्टैब्लिश करना है. एक बार लैरेंजियल इडीमा हो गया, उसके बाद कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा बचता नहीं है. यू हैव टू गो फॉर इवेंचुअली ट्रेकोस्टमी. इसीलिए एयरवे एस्टैब्लिश करना है. बर्न का पेशेंट है तो सबसे पहले देखना है कि भाई लैरेंजियल इडीमा तो नहीं सेटल हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर. देन इफ देयर इज स्ट्राइडर और वॉइस चेंजेस, ऑब्वियसली यू नीड टू हैव एन एयरवे असेसमेंट एंड intubation when in this needed in those cases. Head injury का patient है, unconscious है, combative है, then also you will need for an airway assessment and management here. Combative patient दो वजह से हो सकता है बेटा. if the patient is intoxicated, मतलब he has inebriated alcohol consumption किया है, या फिर if there is hypoxemia, that also lead to combativeness. So generally you will find on the rounds that
कंसल्टेंट इज वॉकिंग विथ यू, इफ ही फाइंड्स द पेशेंट इज कम्बैटिव, बोलेंगे कि बेटा आप ना बोलोगे कि ऑक्सीजन मास्क लगाओ, उसको ऑक्सीजन जैसे जैसे आएगी कम्बैटिवनेस स्लोली रिड्यूसेस दैट, ठीक है, ओके। नाउ सेकंड वुड बी व्हेन इज द नीड फॉर वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजन। अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स नहीं है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आपको नहीं अप्रिशिएट हो रहे हैं, तो देन आपको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ओके। What are the indicators for difficult intubation? This is very important. तो पहला, if there is cervical spine injury, obviously. दूसरा, if there is severe arthritis of the cervical spine. तीसरा, if there is significant maxillofacial or mandibular trauma. Mouth opening अगर limited है, then again it's a difficult intubation. Obesity, obviously, and obviously in pediatric patients. And lastly, if there are anatomical variations, जैसे कि chin receding है, if there is overbite, if there is short muscular neck. आपने असेस किया डिफिकल्ट इंट्यूबेशन किया, कैसे असेस करते हो बेटा? वी यूज द लेमन निमोनिक हियर। क्या क्या? एल स्टैंड्स फॉर लुक एक्सटर्नली। तो जो भी आपने ऊपर एब्नॉर्मलिटीज पढ़ी हैं वो सब आप एक्सटर्नली ढूंढने की कोशिश करोगे, अगर है तो दैट मीन्स इट इंडिकेट्स डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। ई, यू इवेल्युएट द 3-3-2 रूल। अब 3-3-2 रूल मतलब बेटा पहला 3 क्या? द डिस्टेंस बिटवीन द इंसाइजर, अगर 3 फिंगर आपको मिल रहे हैं, 3 फिंगर ब्रेड्थ है अवेलेबल, दैट मीन्स इट्स एन एडिक्वेट एयरवे, यू डोंट हैव टू, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन नहीं होगा। दूसरा, इफ देयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द हायोइड एंड द चिन बोन इज 3 फिंगर्स, दैट इज ऑल्सो गुड। And third, if there is distance between the thyroid notch and the floor of the mouth is 2 finger breadth, this is adequate, ठीक है। फिर M stands for मलमपट्टी स्कोरिंग, O stands for obstruction and N stands for neck mobility। ये सब एनेस्थीसिया की चीजें हैं क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ ATLS एयरवे डिसीजन स्कीम, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये नई चीज है, ATLS 10th एडिशन में इनकॉर्पोरेट हुई है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। नाउ इनिशियली जब पेशेंट आता है, आप फटाफट प्रेप करते हो, यू गो फॉर एडिक्वेट सक्शनिंग ऑफ सिक्रीशन, ओरो एंड नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन, दोनों को आप सक्शन आउट करोगे बेटा। दूसरा, आप सर्वाइकल स्पाइन के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करोगे, स्टेबलाइज करोगे सर्वाइकल स्पाइन को। एंड थर्ड, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद इक्विपमेंट्स, अगर इंट्यूबेशन की जरूरत है, एंडोट्रेकियल ट्यूब एज वेल एज फॉर डेफिनेटिव एयरवे, आपको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब भी आपके साथ रेडी रखनी है, ठीक है, ऑलराइट। आपने प्री ऑक्सीजनेट किया हाई फ्लो ऑक्सीजनेशन के साथ। अब आप ऑक्सीजनेट जब आप कर रहे हो पेशेंट में, सपोज आपने देखा SpO2 मॉनिटर लगाया, उसका ऑक्सीजन लेवल जो था वो 86 चल रहा था, आपने जैसे ही मास्क लगाया लेवल बढ़ के अगर 95-96 हो गया, मतलब पेशेंट ऑक्सीजनेट कर रहा है, तो दैट इज गुड। इफ द पेशेंट इज नॉट ऑक्सीजनेटिंग, मतलब कहीं अपर एयरवे में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आपको एक डेफिनेटिव एयरवे एक्सेस लेना पड़ेगा। सो यू हैव टू गो फॉर डेफिनेटिव सर्जिकल एयरवे इन दोज केसेस। If he is able to oxygenate, yes, then you assess the airway anatomy. You predict if the intubation is difficult via the lemon that we just read about, lemon mnemonic के साथ। अब इसी में अपन और आगे पढ़ते हैं। If the intubation is easy, मतलब आपको मिल रहा है कि लेमन में कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्ट इंट्यूबेशन नहीं है, If it is easy, we attempt the intubation. If it is unsuccessful, you go for adjuncts. अब adjuncts की हम बात करते हैं बेटा, दो तरह के adjuncts हम यूज करते हैं. We either go for GEB, that is gum elastic bougies, or you can also go for laryngeal mask airway. If all of this fails, again obviously we have to go for definitive surgical airway, that is your mainly tracheostomy करते हैं. दो चीजें और पढ़ेंगे बेटा. We also go for cricothyroidotomy, उसके बारे में पढ़ेंगे. But let us first go to if it is not easy. अभी तो अपन ने easy पढ़ा था. अगर easy नहीं है, difficult है, तो you have to call for assistance. You have to call for specialists to perform this procedure, and we attempt awake intubation. अगर नहीं हो पा रहा, then again we go for adjuncts, GEB and laryngeal mask airway. That is what we need to know. अब जब हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की बात करते हैं बेटा, यूजुअली हम दो तरह से एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं. या तो हम ओरोट्रेकियल करते हैं, नेजोफेरेंजियल रूट से जा सकते हैं. मेनली हम ओरोट्रेकियल ही करते हैं. नेजोट्रेकियल जब भी करते हैं तो एक तो पहली बात कम करते हैं. कब नहीं करते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो स्पेसिफिकली इन स्कल बेस्ड फ्रैक्चर्स इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ सर्जिकल एयरवे. अब सर्जिकल एयरवे बेटा दो चीजें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे. एक, या तो हम क्रिकोथायरॉयडोटमी से हम इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और दूसरा हम ट्रेकियोस्टमी से एस्टैब्लिश करते हैं. तो ट्रेकियोस्टमी के बारे में हम ईएनटी में मेनली पढ़ते हैं. नाउ वी टॉक मेनली हियर अबाउट क्रिकोथायरॉयडोटमी. अब क्रिकोथायरॉयडोटमी इमरजेंसी में हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज नीडल क्रिकोथायरॉयडोटमी, राइट. और अब केवल नीडल डाल के कर दी. कहाँ डाल रहे हैं? क्रिकोथायरॉयडोटमी. बेसिकली क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के अंदर हमने नीडल डाल दी. नीडल से हमने एक्सेस ले लिया ट्रेकिया का. सो दैट इज क्रिकोथायरॉयडोटमी, नीडल क्रिकोथायरॉयडोटमी. और यू कैन गिव एन इंसिजन, दैट इज सर्जिकल क्रिकोथायरॉयडोटमी. ठीक है. तो बेसिकली हमें कब जरूरत है ये देखते हैं. सो व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर सर्जिकल एयरवे? नंबर 1, इफ देर इज इनएबिलिटी टू पेस एन एंडोट्रेकियल ट्यूब. आपने पढ़ा ऊपर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सर्जिकल एयरवे की जरूरत है, राइट. तो नीडल क्रिकोथायरॉयडोटमी और क्रिकोथायरॉयडोटमी और सर्जिकल एयरवे इज नीडेड फर्स्ट व्हेन यू कैन नॉट डू अ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन. दूसरा, इफ देर इज प्रेजेंस ऑफ ग्लॉटिक एडिमा. तीसरा, इफ देर इज लैरेंजियल फ्रैक्चर. फोर्थ, इफ देर इज सिवियर ओरोफेरेंजियल हेमरेज दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द एयरवे. फिफ्थ,
Okay, so these were the 4 indications. Now coming on to needle cricothyrotomy. हमने क्या बोला बेटा, cricothyroid membrane से हम access ले रहे हैं. Now needle insertion through the cricothyroid membrane into the trachea, it's an emergency procedure. अब ये करने के बाद हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? वी यूज द PTO टेक्निक. व्हाट इज दिस PTO टेक्निक? दिस इज परक्यूटेनियस ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजनेशन टेक्निक. अब हमने क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन से इंसर्ट नीडल डाली, कैनुला डाला. अब एडल्ट्स के अंदर हम कौन सा साइज यूज करते हैं बेटा? वी यूज अ 12 to 14 गेज एंड इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स वी यूज योर 16 to 18 गेज कैनुला. ठीक है, ओके. अब इस कैनुला को हम कनेक्ट कर देते हैं किससे बेटा? ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हैं. कितना देते हैं? 15 लीटर्स पर मिनट विद अ वाई कनेक्टर. अब इसमें हम इंटरमिटेंट इंसफलेशन मेथड यूज करते हैं. व्हाट डज दैट मीन? 1 सेकेंड ऑन 4 सेकेंड ऑफ. दिस इज व्हाट इज डन हियर. नाउ the key thing that was asked in this INICET, May 2025 INICET was कि जब भी हम needle cricothyroidotomy जब करते हैं, can it be used for a prolonged duration? No, maximum आप इससे 30 से 45 मिनट ही टाइम बाय कर सकते हो. So it can be used for oxygenation for 30 to 45 minutes only. Why? After that what happens is there is inadequate exhalation, CO2 retention होता है, and that is why it is not preferred beyond this time. It has to be replaced or followed up by definitive tracheostomy. It has to be followed up. ठीक है, so this is what you need to know about cricothyroidotomy. ए पढ़ लिया है पूरा. अब बी पढ़ते हैं, ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन. बेटा ऑल द पेशेंट्स शुड रिसीव हाई फ्लो ऑक्सीजन. चेस्ट एग्जामिनेशन किया अलॉन्ग विद ऑस्कल्टेशन. हमने आइडेंटिफाई करी इंजरीज जो कि इंपेयर कर सकती थी वेंटिलेशन को, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग थी. क्या क्या हो सकती है बेटा? वी हैड रेड अबाउट इट इन द ट्रॉमा टाइज. जितनी भी रेड वाली कैटेगरी वाली थी सब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करनी है. टेंशन न्यूमो, मैसिव हीमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स एंड ट्रेकियल एंड ब्रोंकियल इंजरीज. अकॉर्डिंगली इनको मैनेज करना है. सो पल्स ऑक्सीमेट्री अलॉन्ग विद द इमेजिंग ऑल्सो इज नीडेड हियर. ठीक है, ऑल राइट. सी पे आते हैं बेटा, दैट इज सर्कुलेशन एंड हिमरेज कंट्रोल. एक्सटर्नल हिमरेज को मैनेज करना है, इंटरनल हिमरेज को कंट्रोल करना है. अलॉन्ग विद दैट सर्कुलेशन में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या ध्यान रखना है इस वाले स्टेप में? यू हैव टू इंसर्ट 2 लार्ज बोर IV कैनुला. कितना? 18 गेज हम लेते हैं बेटा. ग्रीन कैनुलाज आपके यूज होते हैं इसमें. हम कितना फ्लूइड देते हैं? फ्लूइड बोलस 1 लीटर का वार्म फ्लूइड. हमेशा वार्म फ्लूइड यूज करोगे 1 लीटर. दिस इज द न्यू अपडेट. Earlier we used to give 1.5 to 2 liters of fluid challenge. Nowadays we only advise 1 liter of fluid challenge. Overload नहीं करते हैं पेशेंट्स को फ्लूइड के साथ. We end up doing or giving a patient dilutional coagulopathy. That should be avoided at all cost. तो आपने 1 लीटर फ्लूइड चैलेंज दिया. If it fails, either you can go for emergency management or you can go for a definite मतलब सेंट्रल लाइन डाल दोगे, IJV एक्सेस ले लोगे. इफ यू आर गोइंग फॉर इमरजेंसी मेजर्स, क्या क्या हो सकते हैं बेटा? इंट्राऑशियस एक्सेस ले सकते हो या वीनस कट डाउन कर सकते हो. ग्रेट सैफिनस वेन एट मिडल मेलियोलस आप यूज कर सकते हो. ये 2 मेजर्स हैं आपके ऊपर आपको दिख रहा है बेटा. बिलो द ट्यूबल ट्यूबरोसिटी वी गो फॉर द इंट्राऑशियस एक्सेस, या आप मिडल मेलियोलस के ऊपर आप GSV एक्सेस भी ले सकते हो. दैट इज व्हाट वी कॉल एज द वीनस कट डाउन. नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज प्रोसीजर्स. इंट्राऑशियस फिर भी यूज होता है, वीनस कट डाउन इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू नो इज परमिसिव हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन दैट वी आर परमिटिंग. इमीडिएटली पुश नहीं करके आप ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाने की कोशिश करो. किस ब्लड प्रेशर की बात हो रही है बेटा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की. बेसिक आइडिया इज टू अवॉइड एक्सेसिव ब्लीडिंग बट साइमल्टेनियसली मेंटेन एडिक्वेट परफ्यूजन टू द की ऑर्गन. सो इनिशियल एम इज टू मेंटेन ब्लड सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड किडनी. टारगेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना मेंटेन करना बेटा? 70 to 90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. हेड इंजरी है तो आपका टारगेट शिफ्ट होता है मोर देन 90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. नहीं है तो हम छोटा बोलस देंगे, स्मॉल बोलस IV of fluids of 250 ml and then we again palpate the radial pulse. Now, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एक्सेस ऑफ IV crystalloids और colloids are not administered to avoid dilutional coagulopathy. This is again very dangerous. We don't want to do that. We don't want to give patient dilutional coagulopathy. Therefore, we give a restricted fluid challenge of 1 liter. ठीक है, all right. अगली चीज बेटा, इफ द पेशेंट इज सिवियरली इंजर्ड, हाइपोवॉलेमिक है, वी गो फॉर गिविंग ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स. हम देते हैं मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल देते हैं बेसिकली. सो नॉट द क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन बट वी गिव ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स. Every hospital has a massive transfusion protocol. Generally, we follow the ratio of 1:1:1. क्या देते हैं बेटा? 1:1. We give packed red cells, we give FFP and platelets in the ratio of 1:1:1. ये components आपसे पूछे जाते हैं, packed red cells, FFP and platelets. अगर
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट बेली में अपडेट है, 10th एडिशन ऑफ ATLS में भी है, ये क्रैश 2 ट्रायल के फाइंडिंग्स हैं. If the systolic blood pressure is less than 110 millimeters of mercury or the heart rate is more than 110 per minute, we have to start giving tranexamic acid. We give 1 gram of IV tranexamic acid over 10 minutes followed by 1 gram over 8 hours. This is what is extremely important. Why do we give tranexamic acid? It is an antifibrinolytic drug. It reduces the risk of further bleeding and therefore reducing the mortality. Both blunt and penetrating trauma दोनों में दिया जाता है. अब कब देना चाहिए आपको tranexamic? This is more important. It should be administered as soon as possible, ideally within the first hour from injury, and the first dose कभी भी 3 घंटे के बाद नहीं, 3 घंटे के अंदर ही आपको देनी है. So it has to be administered within the first hour ideally, but not after the third hour, मतलब not beyond third hours from the injury, right? This is what is important from that perspective. D and E आपको already पता है. D is for disability, जिसमें हम GCS score calculate करते हैं. E is for the exposure of the other injuries. Now Glasgow कोमा स्केल जल्दी से पढ़ते हैं बेटा. लेट अस रिवाइज व्हाट आर द कंपोनेंट्स, ये आपको पता होता है. लेट्स क्विकली रिवाइज. जीसीएस E, B और M हम असेस करते हैं बेटा. बेस्ट स्कोर लेते हैं बेटा. बेस्ट आई रिस्पॉन्स देखते हैं E, जिसमें हम देते हैं स्कोर 4 to 1 हम देते हैं. कभी भी 0 नहीं होता है किसी भी पैरामीटर में, याद रखना. दिस इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, सो 4 स्टैंड्स फॉर स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, 3 स्टैंड्स फॉर आई ओपनिंग टू स्पीच, 2 स्टैंड्स फॉर आई ओपनिंग टू पेन, एंड 1 इज ऑब्वियसली नो रिस्पॉन्स. ENT मतलब इट इज नॉन टेस्टेबल. ये NT नया पैरामीटर ऐड हुआ बेटा. अगर टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, 1 नहीं दोगे, वील राइट इट एज ENT. बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स इज व्हेन इट इज ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, दैट इज 5. करस्पॉन्डिंगली 4 स्टैंड्स फॉर कंफ्यूज, 3 इज फॉर इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, 2 इज फॉर इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, 1 इज व्हेन देयर इज नो रिस्पॉन्स. नहीं है, इंट्यूबेटेड है, तो VNT हो गया. बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स हम बोलते हैं जब पेशेंट ओबेज कमांड, दैट इज M6. अगर आपको वार्ड पे कंसल्टेंट पूछता है पेशेंट कॉन्शियस है, मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि M6 है कि नहीं है. M6 is obese command, M5 is localizing to pain, M4 is withdrawal from the pain, M3 is abnormal flexion, M2 is abnormal extension, M3 is decorticate rigidity, M2 is decerebrate rigidity, M1 मतलब कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं है, अगर असेस नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज MT. इसी बेसिस पे हम बोलते हैं GCS स्कोर वेरीज फ्रॉम 3 to 15 एंड हम इसको डिवाइड करते हैं. माइनर हेड इंजरी वी से द GCS इज 15 विद नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है. इफ वी से इट्स अ माइल्ड हेड इंजरी, द GCS इज आइदर 14 or 15 बट विद द प्रेजेंस ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. इफ इट इज मॉडरेट head injury, we say the GCS in the range of 9 to 13, and if it is severe head injury, we say the GCS is less than or equivalent to 8. तो 3 से 8 की रेंज है GCS की, then we say it's a severe head injury. नई definitions, अब नए पैरामीटर्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि अगर इंट्यूबेट नहीं कर पा, अगर असेस नहीं कर पा रहे तो हम NT लिखते हैं. सो द पेशेंट इज इंट्यूबेटेड, इट बिकम्स VNT, एंड इफ द E and M इज नॉट बी, अगर आप इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हो तो हम ENT या MNT इसमें लिखते हैं. एक और चीज बेटा इंपॉर्टेंट है जो इनकॉर्पोरेट हुई नहीं, दैट इज योर प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर. इफ बोथ द प्यूपिल्स आर रिस्पॉन्सिव द स्कोर इज 0. If one is unresponsive, the score is 1. If both are unresponsive, the score is 2. तो हम basically GCS P score calculate करते हैं, जिसमें हम GCS minus the P score. So we calculate it as, अगर एक unresponsive है तो जो भी, अगर आपका score 10 है तो 10 minus 1 that is 9. The GCS P scores becomes 9 in that cases. ठीक है? All right. So this was about the theory part of this lecture. Let's solve 2 important questions so that we can apply whatever we have learned. Okay, a 26-year-old male, this is the question that was asked in INICT, recent INICT में पूछा हुआ question है बेटा. A 26-year-old male presented to the emergency department after an RTA with a GCS of 8. On examination, the patient was unconscious with absent breath sound. Breath sounds नहीं थी. On the right side, systolic blood pressure was 80 and SpO2 was 85. What should be the sequence of management? अब इस patient में diagnosis क्या है बेटा? breath sounds absent हैं, systolic blood pressure भी कम है, साथ में SpO2 85 है. These are all indicating towards tension pneumothorax. ठीक है? अब टेंशन न्यूमोथोरैक्स सोच के आप पहली चीज क्या सोचोगे? ICD डालना जरूरी हो गया. दैट इज व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट, बट दैट शुड नॉट बी द फर्स्ट थॉट. हमेशा ABCDE सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है. GCS कितना है? 8. हमने क्या पढ़ा था कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे के लिए? इफ द GCS इज 8 और लेस देन 8, वी विल हैव टू इंट्यूबेट द पेशेंट. सो सिक्योर द एयरवे, insert the ICD and then give the fluids. This is what is the answer for this question. ठीक है बेटा? Okay, next question. A male patient was brought to the emergency department after building collapse.
ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज अ लॉट ऑफ डेब्री इन पेशेंट्स माउथ, ठीक है, डेब्री था पेशेंट के माउथ में. द फॉलोइंग प्रोसीजर एज शोन वाज परफॉर्म्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसीजर इज ट्रू. कौन सा प्रोसीजर हुआ है बेटा, जो भी इमेज थी, ये रिसेंट नीट पीजी 2025 का क्वेश्चन है. क्या दिख रहा है आपको, क्रिकोथैलेडोटमी हो रही है, दिख रहा था क्वेश्चन में, समझ में आ रहा था. उसके बारे में पूछा है क्या सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. इट इज यूज्ड फॉर इफेक्टिव वेंटिलेशन फॉर अप टू 6 आवर्स. 6 आवर्स के लिए होता है क्या, नहीं, इट इज ओनली गुड फॉर 30 to 45 मिनट्स. उतना ही टाइम बाय कर सकता है, 6 घंटे के लिए नहीं होता. सो दिस वाज डेफिनेटली नॉट ट्रू. इट इज यूज टू मेजर सेंट्रल वीनस प्रेशर. सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजर करता है क्या, नो. इट इज यूज टू गिव ऑक्सीजन. मतलब आप एयरवे एक्सेस ले रहे हो इसमें नीडल क्रिकोथैलेडोटमी से, ठीक है, ट्रेकिया तक पहुंच रहे हो, सीवीपी मेजर नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे. सो दैट इज नॉट ट्रू. इट शुड बी फॉलोड बाय ट्रेकियोस्टमी. एब्सोल्युटली ट्रू. आपको फॉलोअप करना ही है, 30 से 35 मिनट का टाइम देता है आपको, उसके बाद आपको ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ेगी इस पेशेंट में. सो दैट इज ट्रू. वर्क ऑफ ब्रीदिंग इज मोर देन बैग एंड मास वेंटिलेशन. वर्क ऑफ ब्रीदिंग होगा क्या, ज़्यादा नहीं बेटा. आपने ऑलरेडी इतना जो ट्रैक था, रेस्पिरेटरी पाथवे जो था, उसको आपने बाईपास कर दिया, सीधा यहाँ से डाल रहे हो. तो जो अपर एयरवे की रेजिस्टेंस थी जो कि ऐड हो जाती है बैग एंड मास्क में, इसमें कम हो गई ना. तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग विल बी लेस और मोर. इट इज गोइंग टू बी लेसर दैन BMV. सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C. ठीक है बेटा. सो दीज वर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रॉमा ट्रायज एंड प्राइमरी सर्वे दैट यू वर सपोज टू नो. ऑल राइट, थैंक यू सो मच.